بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے بلے کا نشان واپس کرنے کے لیے دائر انٹرا کورٹ اپیل خارج کر دی ہے۔ عدالت نے واپس لینے کی بنیاد پر اپیل خارج کی۔ سنگل بینچ کا فیصلہ برقرار رکھا گیا ہے۔ جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ اہم خبر ہے آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے بلے کا نشان واپس کرنے کے لیے دائر انٹرا کورٹ اپیل خارج کر دی ہے۔ عدالت نے واپس لینے کی بنیاد پر اپیل کو خارج کیا۔ سنگل بینچ کا فیصلہ برقرار ہے۔ جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ڈیفنس میں سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی رہائش کا آمد۔ بھائی چودھری محمد رمضان کے انتقال پر تعزیت، بلندی درجات کے لیے فاتحہ خوانی اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی ہے۔ اہم خبر ہے آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ڈیفنس میں سابق گورنر چودھری محمد سرور کی رہائش کا آمد ہوئی۔ بھائی چودھری محمد رمضان کے انتقال پر تعزیت، بلندی درجات کے لیے فاتحہ خوانی کی اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا بھی کی ہے۔ بی بی پاک دامن مزار اور پی آئی سی میں بحالی و تعمیراتی کاموں کی مانیٹرنگ جاری ہے۔ نگران وزیر ہاؤسنگ پنجاب بیرسٹر سید اظفر علی ناصر اور کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کا دورہ۔ مزار میں نئے ڈیزائن کے مطابق تعمیراتی کاموں کی تکمیل کا جائزہ لیا گیا ہے۔ کمشنر لاہور کی داخلی و بیرونی راستے میں سیوریج لائن کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ بی بی پاک دامن مزار اور پی آئی سی میں بحالی و تعمیراتی کاموں کی مانیٹرنگ جاری ہے۔ نگران وزیر ہاؤسنگ پنجاب بیرسٹر سید اظفر علی ناصر اور کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا نے دورہ کیا۔ مزار میں نئے ڈیزائن کے مطابق تعمیراتی کاموں کی تکمیل کا جائزہ لیا گیا ہے۔ کمشنر لاہور کی داخلی و بیرونی راستے میں سیوریج لائن کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ معروف اداکار 76 سالہ خالد بٹ انتقال کر گئے ہیں۔ خالد بٹ نے ٹی وی، فلم اور سٹیج کے لیے بہت کام کیا۔ خالد بٹ کچھ عرصے سے جگر کے عارضے میں مبتلا تھے۔ خالد بٹ کی نماز جنازہ کل نماز عصر کے بعد ان کی رہائش گاہ وابڈا ٹاؤن میں ادا کی جائے گی۔ احوال بتائیں گے نمائندہ لاہور نیوز مجاہد لطیف۔ مجاہد بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، انتہائی افسوسناک خبر ہے کہ فلم، ٹیلی ویژن اور سٹیج کے بہت ہی معروف اداکار جنہوں نے ریڈیو پر بھی بہت زیادہ کام کیا، خالد بٹ 76 برس کی عمر میں آج شام جو ہے ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے وہ عارضہ جو جگر ہے اس میں مبتلا تھے۔ جگر کی کچھ بیماریاں تھی، چل رہی تھی، کچھ دنوں سے ہاسپٹل میں بھی زیر علاج تھے۔ 2 دن پہلے انہیں کچھ طبیعت بہتر ہونے کے بعد ان کی رہائش گاہ وابڈا ٹاؤن جو تھی وہاں پہ منتقل کیا گیا، لیکن آج شام جو ہے وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی عمر 76 برس تھی۔ انہوں نے بطور پروڈیوسر جو ہے وہ فلمیں بھی بنائی، پھر کچھ بطور پروڈیوسر انہوں نے ٹیلی ویژن پلیز بھی کیے۔ بہت سینئر اور بہت ہی مزے ہوئے اداکار تھے، کریکٹر ایکٹر بہت اچھے تھے۔ ٹیلی ویژن کے بہت سارے مقبول ٹی وی ڈراماز جو ہیں ان میں انہوں نے کام کیا۔ کبھی خان کے ساتھ انہوں نے کام کیا، توقیر ناصر کے ساتھ انہوں نے کام کیا، سہیل احمد کے ساتھ انہوں نے کام کیا۔ بہت سارے مزے ہوئے فنکاروں کے وہ ساتھی تھے اور سب کے ساتھ ان کا بہت ہی زیادہ پیار تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی جو طبیعت تھی، ان کا جو اخلاق تھا، سب کے ساتھ بہت زیادہ ان کی دوستیاں بھی تھیں۔ اور اشرف خان ان کے درینہ دوستوں میں جو ہے وہ بھی شامل ہیں، اور بھی فنکاروں کے ساتھ ان کے بہت ہی زیادہ اچھا پیار اور اچھا تعلق رہا تھا۔ اور کچھ عرصہ علالت کے بعد وہ آج انتقال کر گئے ہیں۔ ان کی نماز جنازہ کل نماز عصر کے بعد جو ہے وہ ادا کی جائے گی۔ ان کا جنازہ جو ہے وہ ان کی رہائش گاہ وابڈا ٹاؤن سے ہی اٹھایا جائے گا اور مقامی قبرستان میں ان کو سپرد خاک کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، مجاہد لطیف اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ اور سیاسی درجہ حرارت کی بات کریں، انتخابی دنگل کے لیے مسلم لیگ نون کے امیدوار فائنل پارٹی ٹکٹ حاصل کرنے والوں کی فہرست جاری کر دی گئی ہے۔ لاہور کے 14 حلقوں سے نواز، مریم نواز، شہباز شریف اور حمزہ شہباز نون لیگ کے امیدوار ہوں گے۔
मुस्लिम लीग नून के टिकट हासिल करने वाले उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। ज़राए के मुताबिक लाहौर के 14 हलकों से नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज नून लीग के उम्मीदवार होंगे। ख्वाजा साद रफीक, शेख रुहेल असगर, सैफुल मलूक खोकर, मलिक अफजल खोकर और अताउल्ला तारड़ भी टिकट हासिल करने में कामयाब। लाहौर से अब्दुल अलीम खान और ओन चौधरी की कौमी असम्बली की 2 सीटों पर एडजस्टमेंट। डॉक्टर तारिक फजल, अंजुम अकील खान, वकार मुमताज को इस्लामाबाद से कौमी असम्बली के टिकट मिले। राना सनाउल्लाह, आबिद शेर अली, राजा रियाज अहमद और दीगर फैसलाबाद से फाइनल। अमजद फारूक खोसा, अवैस लगारी, उसामा करीम, डीजी खान से मैदान में हैं। राजनपुर में कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों से अमार खान लगारी, सरदार हफीज दरेशक और सरदार रियाज मजारी मुस्लिम लीग नून की तरफ से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। शहबाज शरीफ फैमिली की मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरीयत। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। साबिक मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का दरख्वास्त में कहना है कि 15,000 ट्रांजैक्शंस के जरिए 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली को केस से बरी करने का फैसला कलअदम करार दिया जाए। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखिए। शहबाज शरीफ फैमिली को मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरी करने का फैसला चैलेंज। साबिक मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। कहा कि केस की इंक्वायरी के दौरान 28 बेनामी अकाउंट सामने आए। 15,000 ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड भी मौजूद था जिसे चलान का हिस्सा बनाया गया। शहजाद अकबर का मौक़िफ़ है कि केस के चलान में 100 गवाहों की फहरिस्त फराहम की गई। 15,000 ट्रांजेक्शन के जरिए 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई। FIA सेंट्रल ट्राई कोर्ट ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को दस्तावेजी सबूतों के बावजूद बरी कर दिया। साबिक मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का मजीद कहना है कि 4,000 सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेजी सबूतों के साथ केस का चलान जमा कराया गया। अदालत आलिया मुल्ज़िमों को बरी करने का फैसला कलअदम करार दे। लाहौर के हल्का NA 122 से बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस तारिक नदीम ने करार दिया कि बानी PTI की सज़ा किसी मजाज अदालत ने ख़त्म नहीं की। सज़ा मुअत्तल हुई लेकिन नाअहली बरकरार है। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक नदीम ने हल्का NA 122 से बानी PTI के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस तारिक नदीम ने बतौर इलेक्शन एपलेट ट्रिब्यूनल 19 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में लिखा गया है, बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के रिटर्निंग अफसर के फैसले में ठोस वजूहात हैं। अभी तक किसी मजाज अदालत ने इलेक्शन कमीशन की सजा खत्म नहीं की। फैसले में मजीद कहा गया है कि बानी PTI को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दिया। अदालत ने उनकी सजा मुअत्तल की है। जुर्म खत्म नहीं हुआ। जब तक किसी अदालत से बरियत ना हो, जुर्म खत्म नहीं हो सकता। सजा मुअत्तल होना और बरियत होना 2 अलग अलग चीजें हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से दी गई सजा अभी तक बरकरार है। तहरीरी फैसले में लिखा गया है कि रिटर्निंग अफसर के फैसले के खिलाफ अपील मुस्तरद की जाती है। बानी PTI के वकील राय मोहम्मद खान खरल ने फैसला वसूल कर लिया। आम इंतखाबात के लिए लाहौर की इब्तदाई पोलिंग स्कीम तैयार। शहर की 44 कौमी और सूबाई सीटों के लिए 68,58,000 शहरी वोट डालेंगे, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में 4,354 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। लाहौर न्यूज़ ने शहर लाहौर के लिए इब्तदाई पोलिंग स्कीम की दस्तावेजात हासिल कर ली। कौमी असम्बली की 14 और पंजाब असम्बली की 30 नशिस्तों के लिए 68,58,095 शहरी वोट डालेंगे। लाहौर में मर्द वोटर्स की तादाद 36,36,253 जबकि खातिन वोटर्स 32,21,842 हैं। वोटर्स के एतबार से लाहौर का सबसे बड़ा हल्का NA 118 होगा, जहाँ 7,35,251 अफराद हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे। सबसे छोटे हल्के NA 124 में 3,10,116 वोटर्स हैं, जबकि सबसे बड़े सूबाई हल्के PP 147 में 3,68,998 शहरी वोट डालेंगे। शहर में 4,354 पोलिंग स्टेशन और 12,991 पोलिंग बूथ भी कायम किए जाएंगे, जबकि इलेक्शन कमीशन लाहौर के लिए हतमी पोलिंग स्कीम बाद में जारी करेगा। कैमरामैन अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। कि अगले 2 रोज़ तक शहर का मौसम अबर आलूद रहेगा। बारिश का कोई इम्कान नहीं। मौजूदा दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आज शहर का कम से कम दर्जा हरारत 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम का हवाल बताएंगे शाहजेब शहजाद। जी शाहजेब। जी बिल्कुल, अगर लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात कर ली जाती है तो दिन ब दिन पारा गिरने से शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। ठंड में इजाफा होने से ठंडी हवाएं भी चलने का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में अभी जो दर्जा हरारत है वो 9 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब रिकॉर्ड किया गया है,
जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि आने वाले 10 रोज़ में बारिश का कोई इम्कान नहीं जाहिर किया जा रहा, जबकि अगले 2 रोज़ तक शहर का मौसम अब्बर आलूद रहेगा और साथ ही साथ सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला भी जारी रहेगा। आपको बताता चलूँ कि हवा में नमी का तनासुब 86% के करीब बताया जा रहा है, जबकि हवा की रफ्तार 3 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से चल रही है। हल्की ठंडी कभी तेज़ हवाएं चलने का सिलसिला अभी भी जारी है, जिसने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया है। शहरियों के लिए ये हदायत है कि वो गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करें, मफलर लें और साथ ही साथ जैकेट्स का इस्तेमाल करें ताकि सर्दी की शिद्दत से बच सकें। ठीक है, शाहजेब अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पंजाब हुकूमत का अहम इकदाम, नौजवानों को रोज़गार के लिए कनाडा भिजवाया जाएगा। सूबे की तारीख में अस्पतालों की तामीर और मरम्मत के सबसे बड़े पैकेज की भी मंजूरी दे दी गई है, जबकि कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात की फराहमी के प्रोग्राम में भी तोसी का फैसला कर लिया गया। लियाकत अली की रिपोर्ट। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास, नौजवानों को रोजगार के लिए कनाडा भिजवाया जाएगा। सूबे की तारीख में अस्पतालों की तामीर और मुरम्मत के सबसे बड़े पैकेज की भी मंजूरी। अस्पतालों में 15,000 नए बेड्स की गुंजाइश और जदीद ऑपरेशन थिएटर कायम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की वुज़रा को अस्पतालों के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग जारी रखने की हिदायत। कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात के फराहमी के प्रोग्राम में तोसी। भल सफाई मुहिम चलाने के लिए फंड्स के इजरा का फैसला। काबीना ने पंजाब क्रिश्चियन मैरिज रूल्स की भी मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के लिए गंदम का कोटा भी मुख्तस किया जाएगा। सूबाई वजीर असफर अली नासिर सूबे की तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज के चेयरमैन मुकर्रर। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर सर्विस एरियाज और टोल प्लाजा के लिए अराजी मुंतकिल करने की भी इजाजत। निगरान पंजाब काबीना ने स्कूलों में मुफ्त कुतब की फराहमी के लिए फंड्स की मंजूरी दी। CBD डिप्लोमेटिक इनक्लू में नए चीनी कौंसलेट के कयाम की इजाजत दे दी गई। निगरान पंजाब काबीना ने इजलास में फनकारों की फलाह बहबूद के लिए फंड्स जारी और आर्टिस्ट इंडोवमेंट फंड के मेंबर नामजद करने की भी मंजूरी दे दी। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि सेंट्रल इंडक्शन की दाखिला पॉलिसी की मुखालफत, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की दाखिला पॉलिसी पर अमल दरामद रोकने की दरख्वास्त दे दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने इस्तदा मुस्तरद कर दी। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सरदार सरफराज लोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सेंट्रल इंडक्शन की दाखिला पॉलिसी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त सबाजवे ने इंट्रा कोर्ट अपील में मौक़िफ़ अपनाया कि हर साल तालीमी साल शुरू होने पर दाखिला पॉलिसी बनाई जाती है। PMDC ने मेडिकल स्टूडेंट्स के दाखिले बारे पॉलिसी बना रखी है। UHS ने इख्तियार न होने के बावजूद दाखिला पॉलिसी के रूल्स बनाए। इस्तदा है कि अदालत मेडिकल कॉलेज में दाखिले की पॉलिसी कलअदम करार दे और पटिशन के हक़ में फैसले तक दाखिला पॉलिसी के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी किया जाए। 2 रुकनी बेंच ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की दाखिला पॉलिसी पर अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने PMDC, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को नोटिस जारी करते हुए तहरीरी जवाब तलब कर लिया। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह और डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सुल्तान अकबर का जिला कचहरी प्रोसिक्यूशन ऑफिस का दौरा। इंचार्ज प्रोसिक्यूटर जिला कचहरी की जाली हाजिरी पकड़ी गई है। जाली हाजिरी लगाने वाले प्रोसिक्यूटर को एंटी करप्शन के हवाले करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। नौमान नूर की रिपोर्ट। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब के दौरे के दौरान 2 क्लर्क गैर हाजिर पाए गए। गैर हाजिर होने वाले क्लर्क को शोकाज नोटिस जारी कर दिए गए। इंचार्ज प्रोसिक्यूटर जिला कचहरी की जाली हाजिरी भी पकड़ी गई। जाली हाजिरी लगाने वाले प्रोसिक्यूटर को एंटी करप्शन के हवाले करने का हुक्म, महकमाना इंक्वायरी शुरू कर दी गई। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने तमाम रिकॉर्ड चेक किया। फरहाद अली शाह ने पास किए गए चालानों का जायजा लिया। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फरहाद अली शाह ने कहा कि सरप्राइज विजिट का बुनियादी मकसद मुअज़्ज़िज़ प्रोसिक्यूटर की हाजिरी को यकीनी बनाना है। मैं समझता हूं कि अगर आप बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी चाहते हैं तो प्रोसिक्यूशन को अपना किरदार प्रोसिक्यूटर्स के तौर पे देना है। हमें पोस्टमैन वाला जो एक किरदार हमारा इस सोसाइटी में बन चुका है उसको ख़त्म करना है। और मेरी टीम जो है वो एक कॉम्पिटेंट टीम है, मुझे बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और अब आने वाला वक्त जो है 2024 बेस्ट प्रोसिक्यूशन का ईयर के तौर पर हम मनाएंगे। वकला ने प्रोसिक्यूटर पंजाब के दौरों को प्रोसिक्यूशन महकमा में बेहतरी के लिए एहसन इक़दाम करार दे दिया। कैमरा टीम के हमरा नुमान नूर, लाहौर न्यूज़। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा। 367 तलबा में लैपटॉप तकसीम किए गए। उनका कहना था हुकूमत अस्पतालों की अपग्रेडेशन पर अरबों रुपए लगा रही है। प्रिंसिपल और तलबा ने ऑनरशिप ना ली तो अस्पतालों की हालत बिगड़ कर पहले जैसी हो जाएगी।
निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी आमद 367 तलबा में लैपटॉप तकसीम किए और खिताब में कहा, हुकूमत अस्पतालों की अपग्रेडेशन पर अरबों रुपए खर्च कर रही है। डॉक्टर और प्रोफेसर और तलबा अस्पतालों की ऑनरशिप रखने का फर्ज अदा करें। अगर ये ना किया तो अस्पतालों की हालत बिगड़ कर पहले जैसी हो जाएगी। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने मजीद कहा, बहरिया अस्पताल का दौरा करके सरकारी अस्पतालों को भी इसी तरह बनाने का फैसला किया। अपग्रेडेशन के बाद मियो अस्पताल की इमरजेंसी बहरिया अस्पताल से बेहतर होगी। KEMU में स्टेट ऑफ द आर्ट रीडिंग रूम और कैफेटेरिया बनाया। एक बेड पर एक ही मरीज का इलाज होना हुकूमत की जिम्मेदारी है। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में बच्चों के हुकूक पर मबनी बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का कहना है, बच्चों पर तशद्दुद और उनके इस्तेहसाल के खिलाफ मौसर इक़दामात ज़रूरी हैं। बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्टेक होल्डर्स को मिलकर किरदार अदा करना होगा। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में बच्चों के हकूक पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तलबा और तालिबात को बच्चों के बुनियादी हकूक पर आगाही फराहम की गई। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद और जस्टिस रिटायर्ड सफदर सलीम शाहिद की खुसूसी शिरकत। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का कहना था कि बच्चों पर तशद्दुद और उनके इस्तेहसाल के खिलाफ मौसर इक़दामात जरूरी हैं। बच्चों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर किरदार अदा करना होगा। जस्टिस रिटायर्ड सफदर सलीम शाहिद ने कहा कि बच्चे कौम का मुस्तकबिल हैं और हमें अपने मुस्तकबिल को संवारना है। हमें बच्चों को बराबरी के हुकूक देना होंगे। कॉन्फ्रेंस में स्कूल ऑफ लॉ एंड पॉलिसी के डीन डॉक्टर काशिफ ज़ैदी और डायरेक्टर निजी यूनिवर्सिटी डॉक्टर आसिफ रजा ने भी खुसूसी शिरकत की। 4 साल बाद प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में सेंट्रलाइज्ड दाखिलों की मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई। शरीफ मेडिकल कॉलेज समेत लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज मेरिट में इस साल भी सर फहरिस्त रहे। MBBS में लाहौर का मेरिट ज़्यादा से ज़्यादा 89% रहा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में MBBS का कम से कम मेरिट 79% रहा। सजाद हुसैन की रिपोर्ट। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने पंजाब में 4 साल बाद निजी मेडिकल व डेंटल कॉलेजेस के सेंट्रलाइज्ड दाखिलों की मेरिट लिस्ट जारी कर दी। डेंटल कॉलेजेस की मेरिट लिस्ट में शरीफ डेंटल कॉलेज के साथ लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज सर फहरिस्त रहा। MBBS में लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर का मेरिट 86.636% रहा। अल अलीम मेडिकल कॉलेज लाहौर का मेरिट 87% रहा। शालामार मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर का मेरिट 86.88% रहा। अख्तर सईद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर का मेरिट 85.85% और FMH कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री लाहौर का मेरिट 88% रहा। इसी तरह डेंटल कॉलेजेस की मेरिट लिस्ट में FMH कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री लाहौर का मेरिट 78.34%, लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का मेरिट 78.15% रहा। इसी तरह डेंटल सेक्शन में अख्तर सईद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर का मेरिट 77.92%, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री लाहौर का मेरिट 77.33% और राशिद लतीफ डेंटल कॉलेज लाहौर का मेरिट 77.16% रहा। पंजाब के 32 निजी मेडिकल कॉलेजेस में MBBS की 4000 सीटें, पंजाब के 17 निजी डेंटल कॉलेजों में BDS की 1025 सीटें मुख्तस की गई हैं। उम्मीदवारों के लिए अपने कॉलेजों में फीस जमा कराने की डेडलाइन 11 जनवरी है। दूसरी सिलेक्शन लिस्ट 15 जनवरी को जारी की जाएगी। सजाद हुसैन, लाहौर न्यूज़। फिल वक्त इतना ही।